Hello. Yes. Good evening, students. I hope you are able to hear me. Okay. So, acha, in the previous session, we have discussed about WCR. What is the full form of WCR? Ansh, what is WCR? It is Workmen Compensation Reserve. Okay. So, Workmen Compensation Reserve, why we are keeping this? Why we are maintaining Workmen Compensation Reserve? Sir, To if distribute any loss. incident, Yes, so that suppose if any misevent happens, we can pay to the workers. Okay. And if we wish to pay to the worker, then Workmen Compensation Reserve, any reserve is basically a credit balance. एंड व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी रिजर्व्स है, जो भी प्रॉफिट्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. ओके, सो वी डिस्ट्रीब्यूट reserves in old ratio to old partners. So there might be some situation. What is the basic entry? Workmen compensation reserve debit, because we want to cancel this claim which is our liability by the worker. जितना पे करना है उसको क्रेडिट करो, that is our liability. And to partners capital account, it means if reserve is 100, liability is 40, so remaining 60 we will divide between the partners. Okay, so this is the normal situation. If your claim amount is lower than reserve, तो इट मीन्स आप पार्टनर्स को क्रेडिट कर पाओगे. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू द पार्टनर. इफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 100 एंड क्लेम इज ऑल्सो 100, तो देर विल नॉट बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स. ये भी 100 है, क्लेम भी 100 है, तो पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. सो दिस सिचुएशन इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ अनदर सिचुएशन विच कैन अराइज कि in some cases claim ज्यादा है as compared to what we have set aside. So जितना हमारे पास है उससे ज्यादा की liability आ गई है. So in that case ये हमारा नुकसान है and loss will be debited in one special account. Which is this account? Revaluation account. Okay, so loss will be debited in one special account which is called revaluation account. So if your claim is, let's say, 1,20,000, reserve was 1 lakh, so extra 20,000 you will debit in revaluation account. So what will be here? We will pass two journal entries. Okay, so first entry will be cancel the reserve, debit the loss in revaluation and record the liability. Claim जितना है वो record करो. And then this revaluation will be debited to partners account in the old ratio. So partners capital account debit. यहां पर मैंने लिखा नहीं है, so please note down. You can write in old ratio we will distribute in partners capital account in old ratio. Okay, so let me test your concepts. एक extra question आप लिखोगे and we will discuss journal entries. Extra question is like this: workmen compensation reserve is having credit balance of 1 lakh.
then old ratio between the partners A and B is 3:2. New ratio, please note down the question. New ratio between the partners is equal 1:1. Pass journal entry in each of below cases. You need to pass journal entry. Case number A, if claim by worker is 70,000. Case number B, if claim by worker is not given. Case number C, if claim by worker is 1 lakh. And finally, in case number D, if claim by worker is 1,20,000. Okay, so revise the concept. मैं भी solve करूंगा, but you know after some time. So basically, चलो discuss करता हूँ case number A. Now, first of all, out of these two ratios, which ratio is time pass not to be considered? New ratio. New ratio. Okay, old ratio is important. So in case number A, देखो 1 लाख का रिजर्व है, रिजर्व 1 लाख डेबिट करो, क्रेडिट दिस लायबिलिटी 70,000, तो 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 डिवाइड कर दो पार्टनर्स को, क्रेडिट टू द पार्टनर्स इन रेशियो 3:2. ओके, यहां पर कोई क्लेम नहीं है तो डोंट क्रेडिट क्लेम बाय वर्कर, एंटायर 1 लाख will be distributed amongst partners. In third situation, claim is 1 lakh. It means क्या partners को कुछ distribute हो पाएगा? No. Okay. WCR, workman compensation reserve debit to claim 1 lakh. So entry debit credit equal. And in this case, will you pass 1 entry or 2 entries? 2 entries. We have 1 lakh, 1,20,000 is a liability, so 20,000 का loss है, तो workman compensation reserve debit, loss 20,000 के लिए we will debit revaluation account, okay, and credit will go to claim 1,20,000 and revaluation जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो and debit partners in old ratio. So try this. चलिए हम साथ में सॉल्व करते हैं. So that revision, workman compensation reserve is very easy. So I will write in case number 1. एक काम करता हूं, केस नंबर 1, 2 and 3. केस नंबर 1 मैं लिखता हूं. I can write like this. Slightly मैं मेथड चेंज करता हूं. So I can write like this. Case number 1, 2 and 3. Okay, so I will write case number A. Then my journal entry for case A, B and C. So workman compensation
reserve debit. In any situation, reserve needs to be cancelled. Reserves are credit balance, उसको debit कर दो, cancel हो जाएगा. And credit the claim, record the liability. In first situation, claim by worker was 70,000. In second situation, claim by worker was 0. In third situation, claim by worker was 1 lakh. Remaining amount you will distribute in partners in old ratio. तो 2A का कैपिटल अकाउंट, 2B का कैपिटल अकाउंट. नाउ कितना अमाउंट होगा, आई एम ऑल्सो शोइंग द कैलकुलेशन. हियर इट विल बी 3/5. ए का रेशियो है 3/5, बी का है 2/5 ऑफ 30,000. ये 30,000 कहां से आया? सर वर्कमैनशिप कंपनसेशन रिजर्व माइनस Yes. क्लेम जो भी है वो. सो ये 1 लाख में से हम वर्कर्स को इतना पे कर देंगे, बाकी का 30,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट. सो 5 6 30, 6,000 into 3. Here 6,000 into 2. Okay, easy है. And here it will be 3/5 of what amount? 1 lakh. Yes, entire 1 lakh. Okay, so it is 20,000 into 3. So this partner will get 60,000 and this partner will get 40,000. And in this case, I will write calculation like this: 3/5 of 0 and 2/5 of 0. 0 कहां से आया? Because total amount you will distribute. कुछ भी बचेगा नहीं. This minus this. Reserve minus claim. Yes sir. That is to be divided. So raise your hand if you are clear about situation A, B and C. Okay, good. Now let us discuss the next situation. Which is situation number, case number D. So I will write case number D is important. यहां पर loss है. Loss क्या होगा? If your claim is more than workman compensation reserve, तो loss है. Claim is 1,20,000. Compensation reserve was 1 lakh. So there is a loss of 20,000. So in situation number D, my entry will be workman compensation reserve debit. I need to cancel this. Then I will debit one special account. What is the name of this special account? Yes, it is revaluation account. कितना है revaluation? Already we have decided it is 20,000. And record the claim by workers.
How much is the claim by workers? 1,20,000. So in situation number D, you will pass 2 journal entries. ये तो first थी. Now we will pass second entry. Revaluation को distribute करना है. So cancel this revaluation account. $20,000 and distribute this in partners capital account in old ratio. So ratio was 3/5 and 2/5 of this 20,000. 5 4s are 20. So 4,000 into 3, 12,000. And 4,000 into 2, 8,000. So raise your hand if you are clear about this workman compensation reserve. Okay, good. Now, just like workman compensation reserve, we have the next concept. It is called investment fluctuation reserve. Okay, Vivek. So, Vivek, देखो, in case number D, workman compensation reserve में we were having only 1 lakh, but claim workers को पे करना है ज्यादा, उतना तो है ही नहीं रिजर्व, तो रिजर्व तो 1 लाख से ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते, बट लायबिलिटी 1,20,000 की है, तो ये डिफरेंस विच इज द गैप बिटवीन क्लेम माइनस रिजर्व, क्लेम ज्यादा है रिजर्व से, सो दिस इज योर लॉस, जितना साइड पे रखा था उससे ज्यादा पे करना है, सो लॉस वी विल डेबिट इन रिवैल्यूएशन. ओके, एंड ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली will give you either plus or minus. So revaluation means कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा, अगर नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, बट जो भी प्रॉफिट या लॉस है रिवैल्यूएशन का अल्टीमेटली विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स, बिकॉज ये एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हैं? पार्टनर्स के हैं. So we need to distribute whatever is the balance in revaluation to the partners in old ratio. Clear? Yes, sir. Okay. So now we have investment fluctuation reserve. एक और नाम है investment allowance reserve. अब ये क्या होता है? Now if you invest in shares, so you tell me prices will remain same or it will change? Sir, change. Price will change. So here we can write K due to change in market value of investments. इट मीन्स जब इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में चेंज होता है तब क्या होता है? वी कैन हैव प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट वैल्यू का मतलब है MV. सो व्हेन मार्केट वैल्यू is greater than book value, ये BV का मतलब होता है बुक वैल्यू. नाउ बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू. बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू.
So market value minus book value will give you what? Profit. Profit. लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है? लॉस. लॉस कब होगा? When मार्केट में भाव कम है एज कंपेयर टू व्हाट? बुक वैल्यू. ओके, अब एक एग्जांपल समझते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. नाउ इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो मैं इस रिजर्व को पहले यूज करूंगा, इसीलिए मैंने कुछ पैसे साइड पे रखे थे. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फिर से रिपीट करता हूं. इन फ्यूचर टू कॉम्पनसेट द लॉस और टू एडजस्ट द लॉस और रिडक्शन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, आई विल क्रिएट दिस रिजर्व. प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे रखूंगा इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सो दैट इन फ्यूचर इफ देयर इज ए लॉस तो मैं इस रिजर्व को डेबिट करूंगा. सो प्लीज नोट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ क्रेडिट बैलेंस. ओके, एंड ये क्यों बनता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ past profits to be used. यानी यूज कर सकते हैं. व्हेन आई से यूज्ड, यूज का मतलब होता है डेबिट करना. टू बी डेबिटेड इन फ्यूचर इफ there is a loss. So try to understand what I have written. कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इट इज अमाउंट केप्ट असाइड. ओके, कुछ पैसे प्रॉफिट में से साइड पे रख दिए हैं. वी विल यूज, वी विल डेबिट दिस. कब डेबिट करेंगे इसे? इफ देयर इज व्हाट? लॉस. लॉस है तो विल डेबिट. So if market value is less than book value, so there is a loss. Okay, so practically मैं example से आपको बताता हूं कि how do we pass journal entries. So write one question. Pass journal entry in each of below cases. I am giving details. Just a minute. So I will write investment fluctuation reserve. So in reserve we have 1 lakh. Then in balance sheet, book value of investment. So book value of investment है, let's say 5 lakhs. Then old ratio between partners is 3:2. New ratio between partners is equal. And we have few cases. Case number A. So case number A is if
market value of investment is 5,50,000. Okay. Case number 2, if market value of investment is 5 lakhs. And case number C, कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,50,000. And case number T, if market value of investment is 3,80,000. So are you clear? There are 4 situations. So पहले समझते हैं कि कहां पर प्रॉफिट है, कहां पर लॉस है. ओके. सो मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहां पर हम लिखते हैं आंसर. You should consider whether there is profit or loss. Okay. So मैं यहां पर लिखूंगा मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज प्रॉफिट अगर वो पॉजिटिव है तो, एंड इट इज लॉस अगर वो नेगेटिव है तो. सो इन केस नंबर ए, market value 5,50,000. What was the book value of investment? 5 lakhs. तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ था. yes or no? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So situation number B, market value है 5 lakhs, book value भी है 5 lakhs. तो प्रॉफिट है कि नहीं है? नो. No, sir. सिचुएशन नंबर C, 4,50,000 मार्केट वैल्यू है, 5 lakhs इज द बुक वैल्यू. So there is a loss. कितना? 50,000. 50,000. And situation number D, market value is 3,80,000, but book value is how much? Same, 5 lakhs. So कितना loss है? 1,20,000. 120. ओके. सो याद रखिए जब प्रॉफिट होता है तो हम अलग वे से इसकी अकाउंटिंग करते हैं, एंड इफ देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सो वी डू अकाउंटिंग इन ए डिफरेंट वे. इसकी अकाउंटिंग अलग होगी. बट यहां पर दिस इज अ स्पेशल केस. लॉस है आपका 1,20,000, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं? लुक इनटू द क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में केनाई से 1 लाख है. यस. सो केनाई से ये लॉस, Yes, sir. ये लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है. यस. बट हियर इन 4 सिचुएशन loss is more than investment fluctuation reserve. Okay. So here what is the situation? I will write कि loss is more than investment fluctuation reserve. Loss ज्यादा है. कितना loss ज्यादा है? 20,000. So this 20,000 you will debit
In which account? Revaluation account. So देखिए अभी मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं. ओके, केस नंबर ए, चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, in case number A, there is a profit. If there is a profit, you need to credit which account? Revaluation. Revaluation account. इतना याद रखो, अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करो. ओके, लेकिन लॉस अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू IFR तो ही रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. तो चलिए विदाउट कंफ्यूजिंग यू मैं एंट्री पास करता हूं इन सिचुएशन नंबर ए. सो इन केस नंबर ए वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. रिजर्व 1 लाख है. सो रिजर्व डिवाइड होगा बिटवीन द पार्टनर्स. सो आई विल राइट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट. क्यों मैं डेबिट कर रहा हूं? व्हाट इज द रीजन? मैं इस रिजर्व को क्या कर रहा हूं? कैंसल. इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस रिजर्व. रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. नाउ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है. देखो देयर इज ए प्रॉफिट, सो 50,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी. सो आई विल राइट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट कब डेबिट करना है? जब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू. ऑलरेडी वी नो 50,000. So why 50,000 I am debiting to investment? Because I am increasing investment. Investment की वैल्यू बढ़ानी है because मार्केट में वैल्यू ज्यादा है. So मेरा सवाल ये है, after you pass this journal entry, value of investment in the balance sheet will be 5 lakhs या 5,50,000. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एंट्री पास करने के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. पहले 5 लाख थी, 50,000 ऐड होगा तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू? बताओ. 5,50,000. ओके, एंड आई विल राइट क्रेडिट. सो ये जो क्रेडिट है वो मुझे ट्रांसफर करना है. नाउ लुक हियर, ये पूरा रिजर्व है वो मैं पार्टनर्स को बांट सकता हूं. एंड आई ऑल्सो हैव दिस इन्वेस्टमेंट 50,000. ये इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ानी है. सो एक इजी रास्ता बताता हूं. एक काम करते हैं, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक इजी रास्ता बताता हूं. ओके, लुक हियर, मैं इन दोनों को एक एंट्री में मिक्स करूंगा तो कंफ्यूजन होगा. ओके, तो मैं दोनों को अलग करता हूं. तो रूल नंबर 1, इसको आप अभी साइड पे रखो. तो मैं यहां पर लिखता हूं एंट्री नंबर 1. एंट्री नंबर 1 होगा डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व वॉज 1 लाख, डेबिट कर दो एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स. Which are the names of the partners? A and B. So A का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड B का कैपिटल अकाउंट डेबिट. A का रेशियो कितना था? 3/5. B का रेशियो क्या था? पुराना रेशियो 2/5. So can I say it will be 60,000 and 40,000? Yes. So it is 60,000 and it is 40,000.
क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? रेज योर हैंड, जो भी रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन, book profit on revaluation, क्योंकि न्यू वैल्यू ज्यादा थी। प्रॉफिट क्या था? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, 50,000 का प्रॉफिट था। सो प्रॉफिट के लिए हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कर दो डेबिट 50,000 से, जो मैंने ऊपर किया था। What I'm doing, I'm increasing the value of what? Investment. And credit will go to which account? Revaluation account. Why credit? Because this is my profit. And third one, ये जो भी profit है on revaluation उसको distribute कर दो। So distribute profit on revaluation to old partners in old ratio। पार्टनर्स को डिवाइड कर दो। सो एंट्री नंबर 1 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, एंट्री नंबर 2 इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो, एंट्री नंबर 3 रिवैल्यूएशन को कैंसिल करो। सो टू कैंसिल दिस रिवैल्यूएशन मैं इसको डेबिट करूंगा। सो रिवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट 50,000 and I will distribute to partner A का कैपिटल अकाउंट एंड B का कैपिटल अकाउंट। सो टेक्स्ट बुक में 3 एंट्री दी है तो मैं 3 एंट्रीज बता रहा हूं। सो व्हाट वाज द रेशियो? 3/5 of 50,000। हियर इट वाज 2/5 of 50,000। So it is 30,000 and 20,000। So raise your hand, कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो how many entries we will pass? 3 entries we will pass। First entry, distribute the reserve in old ratio। Entry number 2, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ and revaluation को क्रेडिट करो। And entry number 3, revaluation को कैंसिल करो, इट मींस डेबिट करो, एंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, मींस क्रेडिट करो। सो रेज योर हैंड इफ दिस केस नंबर ए इज क्लियर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आप है ना मीटिंग में रीजॉइन हो जाइए। आई विल डिस्कस अनदर केसेस, प्लीज रीजॉइन। Okay, so now let us discuss case number B. Case number B है loss, but loss is lower than investment fluctuation reserve की balance। So look here, in case number 2, there was no loss, or agar we can say there is no loss, even if there is a loss, loss is lower than investment fluctuation reserve। So here we will pass the entry like this। So investment fluctuation reserve
account debit. ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1 लाख है. एक्चुअली सेकंड सिचुएशन में लॉस इज 0. इट मीन्स कोई लॉस ही नहीं है. ओके, जितना लॉस होता है उतना हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्ट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 1 लाख. देयर इज नो लॉस. सो इसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स. सो वी कैन डिवाइड दिस in partners. In which ratio? Old ratio. A का कैपिटल अकाउंट टू B का कैपिटल अकाउंट कितना है? A का रेशियो 3/5, B का कितना है? 2/5 of 1 lakh. So 23s are how much? 60. 22s are how much? 40. Okay, so there is no loss. अगर लॉस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स. आर यू ऑल क्लियर? ओनली वन एंट्री विल बी देयर. ओके, अगर लॉस नहीं है तो ओनली वन जर्नल एंट्री विल बी देयर. देन वी हैव केस नंबर सी. मैं ऊपर यहां पर लिख देता हूं कि लॉस, एक्चुअली इसको स्ट्राइक कर देता हूं, ये नीचे आना चाहिए. लॉस इज लोअर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो लुक हियर, लॉस कितना था इन थर्ड सिचुएशन? 50,000 का लॉस था. ओके, सो लॉस वाज 50,000, बट इन्वेस्टमेंट रिजर्व में वी वेर हैविंग मोर अमाउंट. सो हियर योर एंट्री विल बी लाइक दिस. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये नाम बहुत भारी है, लिखने में टाइम जाता है, बट एनीवे, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 1 लाख. नाउ देयर इज ए लॉस. लॉस का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. सो आई विल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दूंगा. क्यों मैं क्रेडिट करूंगा? बिकॉज 50,000 से I will reduce my value of investment. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड बचा हुआ I will distribute to partners. A का कैपिटल अकाउंट एंड टू B का कैपिटल अकाउंट. So what was the ratio? 3/5. यहां पर 2/5. बट मैं 1 लाख में से 50,000 को छोड़ के, डिफरेंस ऑफ दिस टू, 1 lakh minus 50,000, remaining amount I will distribute. Okay, so it will be 30,000 and 20,000. So raise your hand. ये सेम है, इसमें मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया था. That's it. बहुत इजी है. So सिचुएशन नंबर सी भी क्लियर है सबको? Yes or no? Okay. And case number D, situation number D. What was there in situation number D? There was a loss. Loss कितना था? 1,20,000. So loss was
higher than investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve में तो 1 लाख ही था. Okay, so look here, loss was 1,20,000. So in this situation your entry will be इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करो पूरा 1 लाख, लेकिन ये जो लॉस है वो डेबिट होगा एक स्पेशल अकाउंट में विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड क्रेडिट विल गो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे रिड्यूस करनी है. सो ये एंट्री एकदम इजी है. एंड रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करो अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. सो नेक्स्ट एंट्री आई विल पास, इसमें 2 एंट्री पास होगी, दैट इज ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो रीवैल्यूएशन कैंसिल करना है, क्रेडिट करो, एंड ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो 3/5 of 20,000. सो 4 3s are 12 and 4 2s are 8. सो आई होप यू आर क्लियर. ये एकदम क्लियर है सबको. ओके, एक प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. सो नोट डाउन दिस, एंड इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन, लेट्स हैव रिवीजन. अगर प्रॉफिट है तो कितनी एंट्री पास करेंगे? इफ देयर इज ए प्रॉफिट तो हाउ मेनी एंट्रीज वी विल पास? 3 एंट्रीज. 3. पहली एंट्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, सेकंड एंट्री रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो, एंड थर्ड रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, जनरली इफ लॉस इज हायर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 2 एंट्री होगी. अदरवाइज इन नॉर्मल केस वी विल हैव ओनली 1 एंट्री. सो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन दूं मैं आपको. Yes, so write this extra. शॉर्ट में मैं लिखता हूं ओल्ड रेशियो 2:3, पार्टनर्स का नाम ए एंड बी. न्यू रेशियो इज गिवन टू कंफ्यूज यू, जिसका कुछ नहीं करना है. लेट्स से इट इज 3:2. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, लेट्स से वो है 20,000. नाउ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन आई से बुक वैल्यू इट मीन्स इट इज बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूं. लेट्स से वो है 1 लाख, एंड हियर वी हैव केस नंबर 1. अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो 1,20,000. केस नंबर 2, यानी हियर यू विल पास 3 जर्नल एंट्रीज. केस नंबर 2, अगर मार्केट वैल्यू इज सेम एज बुक वैल्यू है विच इज 1 लाख. सो यहां पर एक जर्नल एंट्री होगी. केस नंबर 3, अगर मार्केट वैल्यू लेस है बुक वैल्यू से लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेट्स से मार्केट वैल्यू is 70,000. Sorry, market value is 90,000.
So third situation mein market value is 90,000. So here also you will pass one journal entry. And case number 4, if market value is lower than book value, लेकिन जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है, लेट्स से मार्केट वैल्यू है 70,000, बुक वैल्यू है 1 लाख, इसका मतलब आपका लॉस है 30,000, लेकिन फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके पास सिर्फ 20,000 थे. ओके, सो इन दिस सिचुएशन आपको रिवैल्यूएशन डेबिट करना होगा एंड यू विल हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज. सो ट्राई दिस. मैं 5 मिनट में ये सॉल्व करता हूं. सो ट्राई टू फाइंड जर्नल एंट्रीज फॉर दिस सिचुएशंस, केस 1, 2, 3 and 4. Okay, so you have 5 minutes. Doubt है तो आप पूछ सकते हो. You can ask me doubts. So refer the earlier question and then try to answer. केस नंबर 1 शॉर्ट में मैं बताता हूं. देयर इज ए प्रॉफिट. सो इफ देयर इज ए प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को. कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 20,000. एंड ओल्ड रेशियो कितना था? 2:3. It means 2/5 and 3/5. 5 4s are 20, 4 2s are 8, 4 3s are 12. And then I will increase the value of my investment because there is a profit. कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट इज मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू. बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है. सो दिस इज माय प्रॉफिट. हाउ टू फाइंड प्रॉफिट? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, and this will be credited to revaluation account. That's it. And in third, you will distribute this in partners. So I will debit revaluation account. I will credit A का account and B का account. And here it will be 2/5 and 3/5. So 8 and 12. So I hope you are able to understand situation number 1, case number A. Yes or no? Then we have case number 2.
केस नंबर 2 में क्या था? लॉस वॉज 0, सो फ्लक्चुएशन रिजर्व will directly be transferred to the partners. In which ratio? Old ratio. And in case number 3, there was a loss. Case 3 में loss था. Market value was 90,000. Book value was 1 lakh. So 1 लाख का loss था. $10,000 का लॉस था. बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो पैसे थे ऑलरेडी, तो कोई टेंशन नहीं है. ओनली वन एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑलवेज डेबिट विथ फुल अमाउंट. टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करनी है क्योंकि लॉस हुआ है 10,000 का. I will reduce the value of investment. और बचा हुआ डिवाइड कर लो पार्टनर्स को. In which ratio? Old ratio. 20 minus 10, it means 10,000. 5 twos are, so it is 4,000 and 2 threes are 6,000. Confirm karo, are you getting this entry or not? And in case number 4, loss तो था. मार्केट वैल्यू कितनी थी केस 4 में? 70,000. yes or no? So 30,000 का लॉस है, बट रिजर्व में सिर्फ 20,000 थे. सो 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी. रिजर्व यूज कर लो. देयर इज ए लॉस. सो ये जो लॉस हुआ है यानी एक्स्ट्रा लॉस, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा. रिवैल्यूएशन में कौन सा लॉस जाता है? इफ योर लॉस इज मोर देन रिजर्व, रिजर्व से ज्यादा का लॉस हुआ तो इट विल गो टू रिवैल्यूएशन. एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो जाएगी बिकॉज नुकसान था. न्यू वैल्यू वाज 70,000. and second entry is to distribute this. so A का अकाउंट डेबिट, B का अकाउंट डेबिट. यस, वेरी गुड अंश. अंश ने कंप्लीट कर लिया है. टू revaluation account. So A will be debit 2 by 5. In revaluation, we were having 10,000. So here it will be 4,000 and here it will be 3/5. So it will be 6,000. So are you able to understand the difference? Accounting is actually very easy. आपको logic समझना है. If you understand the logic, then no need to remember the entries. Raise your hand if you have written this. Okay, so हम कल continue करेंगे with the few questions based on this investment fluctuation reserve. Okay, feel free to ask any doubts. I am here.
So Aditya, Manmeet, Roshi, Vivek, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you may exit the meeting if you have already written. Yes, Aditya, have written. Just a minute, sir. The last point. Ha, sure, sure. Take your own time. Yes, sir, done, sir. Okay, so we'll continue tomorrow. Bye bye. Okay, sir. Bye, sir.